This meeting which Jesus had, जो सभाएं प्रभु यीशु करते थे, it was not with religious people in that sense. Yes. समाज के धर्मी लोगों के साथ नहीं करते थे। These were outcasts. ये ऐसे लोग होते थे जो समाज में छोटे और तुच्छ पापी माने जाते थे। First verse. पहला वचन, Then drew near unto him all the publicans and sinners for to hear him. लूका 15 उसका पहला वचन, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। The Pharisees and scribes murmured, पर फारसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने This लगे, man receiveth sinners and eateth with them. यह तो पापियों से मिलता है, उनके साथ खाता भी है। Then he spoke this parable unto them. तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, What man तुम में से कौन of है you, having 100 sheep, if he lose one of them, doth not leave 99 in the wilderness and go after that which is lost? तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों, उनमें से एक खो जाए और 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे? Until he find it. What manner of man, what man will not leave the 99 and go and seek the one lost sheep? जब तक वो एक मिल ना जाए, 99 को छोड़कर उस भेड़ को ना खोजता रहे। Yes. हाँ, When you lose your sheep, that's what you will do. जब आप अपनी भेड़ को खोएंगे तो आप ऐसा ही करेंगे। You can see a lot of people going about saying, I lost my animal. आप बहुत से लोगों से मिले होंगे जो कहते हैं कि अरे मेरा पशु खो गया है। They go seeking and searching till they find it. और उस पशु को वो खोजते रहते हैं जब तक कि वो ना मिल जाए। Now, when these religious leaders grumbled, जब ये धार्मिक नेता कुड़कुड़ा रहे थे, Jesus told this parable. प्रभु यीशु ने ये दृष्टांत उनसे कहा। Now I do not know how many people grumbled when Booth Tucker resigned his position and became a Salvation Army officer. मुझे नहीं पता कितने लोग कुड़कुड़ाए होंगे जब बूथ टकर जी ने अपनी सरकारी ओहदे का त्याग पत्र देके साल्वेशन आर्मी के अफसर बन गए। Because he was in the top echelons of government. वो सरकार के बड़े ही ऊंचे पद पर थे। It seems they despised him. They said, what is this fellow? He is a British officer and he is going preaching the word of God. और कहा गया, देखो ये तो एक ब्रिटिश अफसर है और कैसे आज ये लोगों के बीच में प्रचार करता घूम रहा है। He began to march even in Bombay with the Salvation Army drums. और यहाँ तक कि बम्बई शहर में भी साल्वेशन आर्मी के ड्रमों के साथ उन्होंने मार्च किया। My dear people, मेरे प्यारे लोगों, seeking one soul. एक आत्मा को खोजना। Now here you are so many people. यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हैं And generally our mind thinks of great groups, great meetings, great retreats. आमतौर पे हमारा मन हमेशा इस बात को सोचता है कि लोगों की बड़ी भीड़ हो, बड़ी सभा हो, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो। But लेकिन we don't think of the one sinner that is lost. लेकिन हम एक अकेले पापी के बारे में जो खोया हुआ नहीं सोचते। Do you want to leave one boy, one girl in your house to go to hellfire? क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में से एक लड़का या एक लड़की नरक में जाए? Which mother wants to say, oh, I have got 10 children. If one or two go to hellfire for eternity,
that's okay. कौन सी ऐसी माँ होगी जो कहेगी कि मेरे 10 बच्चे हैं, उनमें से एक दो भी अगर नरक चला जाए, अनंत काल के नरक में चला जाए तो कोई बात नहीं। No, नहीं, that mother's heart goes after the one boy who is rebellious. उस माँ का हृदय तो इस अकेले बलवा करने वाले एक बच्चे के पीछे लगा रहेगा। All right, 9 children are in their bed. 9 बच्चे अपने बिस्तर में हैं। It is 12 o'clock, midnight, 1 o'clock. रात के 12 बज गए हैं, 1 बज गए हैं, One bed is empty. लेकिन एक पलंग की जगह खाली है। This rebellious boy has not come home. वो बात ना मानने वाला, बलवा करने वाला लड़का घर नहीं आया। Can the mother sleep? क्या माँ सो सकती है? No. नहीं। She says, when is my boy coming back? What has happened? वो सोचती रहेगी कब मेरा बच्चा घर वापस आएगा, वो सोचती रहेगी। You know, in modern life, आजकल की आधुनिक जीवन शैली में what is happening is many people are dying in accidents. बहुत से लोग एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। They go to the office, वो दफ्तरों में जाते हैं, but they do not return home. लेकिन घर वापस नहीं आते। Only some information comes or a telephone call saying your husband is dead. केवल टेलीफोन आता है, समाचार मिलता है कि फलाने का पति मर गया है, तुम्हारा पति मर गया है। You have learnt the habit of waiting for your husband to come home. आपको अपने पति के इंतजार करने की आदत पड़ी हुई है। Say, my wife Lily drives. She has to drive to do all the work. I don't drive very much now. मेरी पत्नी लिली गाड़ी चलाती हैं, कार चलाती हैं, उन्हें अपने सारे काम गाड़ी चलाकर करने पड़ते हैं। मुझे आदत नहीं है। She must go to the bazaar, get vegetables. वो बाजार जाती हैं और सब्जियां लाती हैं। They're all big distances. Post office 2 miles, 3 miles. चाहे पोस्ट ऑफिस हो, कोई दूसरा दफ्तर हो, 2-3 मील दूर होते हैं। Sometimes we have to post Christ is victors. और कई बार जो पत्रिका क्राइस्ट इज विक्टर है उसको पोस्ट ऑफिस में डालना होता है। Whenever she comes home safe, I am very happy. और जब भी वो घर वापस आती हैं, सुरक्षित आती हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। When your husband comes home, you're happy. जब आपके पति घर आते हैं तो आप बड़े खुश होते हैं। But sometimes when a husband is a drunkard, लेकिन अगर पति शराबी हो, wherever he is, there is trouble. जहां कहीं वो रहे, परेशानी को खड़ा करेगा। Today, आजकल everywhere drink, drink, drink. चारों तरफ हम देखते हैं शराब 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 है। That was the old tradition of Stuartpuram. स्टुअर्टपुरम का तो ये पुराना व्यवसाय है, रीति रिवाज है शराब पीना। Why illicit distillation, गैर कानूनी रूप से शराब बनाना, hiding it in the walls, hiding it in the ground. जमीन में और दीवार में उसे छिपाना। But God converted those men. लेकिन परमेश्वर ने ऐसे लोगों को बदला। God gave them a new heart. परमेश्वर ने उन्हें एक नया हृदय दिया। God made them winners of soul. परमेश्वर ने उन्हें आत्माओं का विजेता बनाया। God made them those that heal the sick. परमेश्वर ने उन्हें ऐसा बनाया जो रोगियों को चंगा करें। But लेकिन if there is new level of drunkenness in colleges today, आज हम देखते हैं कॉलेजों में अलग ही प्रकार का नशा है, शराब पीना है। beer bottles everywhere. चारों तरफ बियर की बोतलें दिखती हैं। That means many are lost. इसका मतलब है बहुत से लोग खो चुके हैं। Your mind after a while becomes so rusty from your drunkenness. और शराब पीने से कुछ समय बाद आपके दिमाग में जंग लग जाता है। You do strange things. आप अलग ही प्रकार की अजीब चीजें करते हैं। Today, after getting drunk,
और आज हम देखते हैं शराब पीने के बाद girls do not even know what they are doing. लड़कियों को पता नहीं कि वो क्या कर रही हैं। They do not even realize they are in adultery. वो इस बात को जान भी नहीं पाती कि वो व्यभिचार में है, Because क्योंकि they went and drank. क्योंकि उन्होंने जाके शराब पी And after that, और उसके बाद sin took hold of them. पाप ने उनके ऊपर काबू किया And they did not know that. और उन्हें इस बात का पता भी नहीं। So, my dear friends, मेरे प्यारे लोगों, we look at the crowd, we look at the face, we look at the salary, we look at the degree. हम लोगों की ओर देखते हैं, भीड़ की ओर देखते हैं, उनकी तनख्वाह देखते हैं, उनकी डिग्रियां देखते हैं, But लेकिन what should we look at? हमें किस बात की ओर देखना है? Is this soul lost? क्या ये आत्मा खो गई है, पाप में खो गई है? Is this family lost? क्या ये परिवार खो गया है And they are going to spend eternity in hellfire. और ये अपना अनंत काल नरक में बिताएंगे? What a terrible thing. कितनी भयानक बात है। Suppose you're locked in a dark room. मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में बंद हैं, No light, कोई प्रकाश नहीं, no windows, कोई खिड़कियां नहीं, and you're locked into that solitary room and no one is there to hear your cry. आप उस कमरे में अकेले बंद कर दिए गए हैं और कोई आपकी आवाज सुनने वाला नहीं। 24 hours are gone 24 घंटे बीत गए हैं and you're thirsty और आप प्यासे हैं, and you want a drop of water. आपको पानी की एक बूंद चाहिए। Nobody to give you a drop of water. कोई भी नहीं जो आपको पानी की एक बूंद तक दे सके। Shall we put you in such a room क्या ऐसे कमरे में आपको हम रखें? for 24 hours? 24 घंटे तक क्या आपको ऐसे कमरे में बंद रखें? But in hellfire, लेकिन नरक की आग में you are going to spend every day forever. आप अनंत काल के लिए, अनंत समय के लिए अपने हर एक दिन को वहां बिताएंगे। Is it possible? क्या ये संभव है? Oh, it seems terrible to me. मुझे बड़ा भयानक लगता है। If you lock me in a dark room for 1 hour, अगर 1 घंटे के लिए मुझे एक अंधेरे रूम में आप बंद कर दें, I am not afraid of darkness. मैं अंधेरे से तो नहीं डरता, But लेकिन you are limiting my freedom. लेकिन आप मेरी आजादी को बंधन में डाल रहे हैं। Suppose my son or daughter are crying from the next room. The house is on fire. मान लीजिए घर में आग लगी है और दूसरे कमरे में मेरा बेटा या मेरे बेटी चिल्ला रहे हैं, Daddy, help me. I am on fire. पिताजी मेरी मदद करें, यहाँ आग लग गई है। And I am locked into this dark room. और मैं इस अंधेरे कमरे में बंद हूँ। What do I say? मैं क्या कहूँगा? I want freedom. मुझे आजाद करो। I want to go and help my son. मैं अपने बेटों को आजाद करना चाहता हूँ। When you go into hellfire, जब आप नरक में जाते हैं, you will want to come back to help your sons so that they should not go back, go to hell. तो आप वापस आके अपने बच्चों को नरक की आग से बचाने के लिए चेतावनी देना चाहते हैं कि वो भी नरक में ना जाएं। You will say, oh, I want some freedom to do something. अरे मुझे यहाँ से छुड़ाओ, मुझे आजाद करो ताकि मैं कुछ कर सकूं। Today, आजकल I meet young people from Andhra, even in London. मैं लंदन में भी आंध्र प्रदेश के कुछ जवानों से मैं मिला। I met one young man recently. हाल ही में एक जवान लड़के से मैं मिला। He came to our retreat. वो हमारी रिट्रीट में आया था He was born in one of the villages somewhere here. और यहाँ पे किसी गांव में उसका जन्म हुआ था। There, another Andhra girl, और एक दूसरी आंध्रा की लड़की, she is trying to get hold of him, वो उसको काबू करना चाहती है, to marry him. उससे शादी करना चाहती है। I told this young man, मैंने उस जवान लड़के से कहा, marriage is not a matter of convenience. शादी कोई सहूलियत वाली चीज नहीं। You must learn the will of God, आपको परमेश्वर की इच्छा को जानना होगा, because that girl has got a visa
to be in London, उस लड़की को अगर एक वीज़ा मिला है कि लंदन में रहने का, will you marry her because you too want to live here? क्योंकि आप इस लंदन में रहना चाहते हैं इसलिए क्या आप उस लड़की से शादी करेंगे? That's all. केवल इसलिए? Today, people are thinking like that only. आज लोग ऐसा ही सोचते हैं। So they will tell you, तो वो आपसे कहेंगे, oh, my son has gone here, my son has gone there. मेरा बेटा वहाँ गया है, मेरा बेटा यहाँ गया है। But what is he doing there? लेकिन वो वहाँ क्या कर रहा है? One man wrote to me, एक व्यक्ति ने मुझे लिखा, my son is sent by his company to California, USA, or someplace in USA. मेरे बेटे को कंपनी ने कैलिफोर्निया में अमेरिका में भेजा है। I don't know how long he has been there. मुझे नहीं पता कितने समय से वो वहाँ है। He did not ask for the magazine. उसने ना मैगजीन मांगी, He didn't ask for prayer. ना उसने प्रार्थना के लिए बताया। He made no attempt to come to any of our retreats. हमारे किसी भी रिट्रीट सभाओं में आने के लिए उसने कोई कोशिश नहीं की। Now we are producing strange fellows like that. ऐसे अजीब और गरीब लोगों को हम पैदा कर रहे हैं। But the Lord Jesus says, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, of course I will sit with these publicans. I will preach to these sinners. मैं इन पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ बैठूंगा और प्रचार करूंगा। Which of you will not go and save your sheep, your lost sheep? आप में से कौन है जो अपनी खोई हुई भेड़ को जाके नहीं ढूंढेगा और बचाएगा? But लेकिन we are producing young people today in our families. आज हम अपने परिवारों में ऐसे जवानों को बना रहे हैं Who do not have the spirit. जिनके पास आत्मा नहीं। The Lord Jesus told us प्रभु यीशु ने हमसे कहा that He would seek one lost sheep. कि वो खोई हुई एक भेड़ को खोजने के लिए जाएंगे। All right, are you ready to do that? क्या आप ऐसा करने को तैयार हैं? Oh, we had big meetings, big Stuartpuram. अरे हमारे पास तो बड़ी बड़ी सभाएं हैं, स्टुअर्टपुरम की सभाएं हैं। No, नहीं, the Bible says, seek the one lost sheep. बाइबल बताती है खोई हुई एक भेड़ को भी खोजो। If you are the lost sheep, अगर आप वो खोई हुई भेड़ हैं, all this crowd must be forgotten. ये सारी भीड़ को हमें भूलना होगा I must seek you, और मुझे आपको खोजना होगा, your salvation. आपके उद्धार को। Today I don't see that spirit at all. आज मैं ऐसी आत्मा को नहीं पाता। I don't see it even in our preachers. हमारे प्रचारकों में भी ऐसी आत्मा को मैं नहीं पाता। That is this going after the lost sheep. खोई हुई भेड़ के पीछे जाना, The Lord taught me that as a boy of 15-16 years. जब मैं 15-16 साल का जवान लड़का था उस समय परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया। And to this day, और आज के दिन तक I think of the lost sheep. मैं खोई हुई भेड़ के बारे में सोचता हूँ। I don't think of the big group, the big retreats and so on. मैं बड़ी सभा, बड़ी भीड़ के बारे में नहीं सोचता, The lost sheep. लेकिन खोई हुई भेड़ के बारे में सोचता हूँ। Do you think of the lost sheep? क्या आप खोई हुई भेड़ के बारे में सोचते हैं? Well, people say, जब लोग कहते हैं we want believers meeting. हमें विश्वासियों की सभा चाहिए, We want revival meeting. हमें बेदारी की सभा चाहिए। Then December has come, we want carol services, Christmas services. दिसंबर आ गया, हमें क्रिसमस कैरल की सभाएं चाहिए। In July and August, we want the anniversary, they're praising God for 70 years of the fellowship. और जुलाई अगस्त में हमें वर्षगांठ की सभाएं चाहिए जहां परमेश्वर का हम धन्यवाद कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें बीते 70 सालों की विश्वास योग्यता के लिए। My, so everybody wants the big meetings, the big show. सभी को बड़ी बड़ी सभाएं चाहिए, बड़ी बड़ी
भीड़ चाहिए। But लेकिन Jesus says, प्रभु यीशु ने कहा, go and seek the one lost soul. जाके उस अकेली खोई हुई भेड़ को, आत्मा को ढूंढो। Are we doing that? क्या हम ऐसा कर रहे हैं? Have you been doing that? क्या आप लोग ऐसा कर रहे हैं? It is 1 year since you came here, maybe. हो सकता है 1 साल हो गया आपको यहाँ आए हुए। It may be 2 years since you came here, and 2 years since you heard me last. और 2 साल हो गए होंगे जब आपने मुझे पहले सुना होगा। But लेकिन now, अब in these 2 years, इन 2 सालों में did you seek one lost soul? क्या किसी एक अकेली खोई हुई भेड़ को आपने खोजा है? Wherever you're studying, जहाँ कहीं आप पढ़ रहे हों, did you seek one lost soul? क्या आपने कोई भी एक खोई हुई भेड़ को खोजा है? No. नहीं। Now, if each one of us had sought one lost soul, अगर हम में से हर एक ने कम से कम एक खोई हुई आत्मा को खोजा होता, I do not know if this place would have been enough at all. तो शायद इस जगह में बैठने की जगह तक ना होती। We must have had to build a place 2-3 times as big as this. और इस जगह का दुगना तिगुना हमें जगह बनाना पड़ता। If you had sought one lost soul, अगर आप में से हर एक ने कम से कम एक खोई हुई आत्मा को खोजा होता। see, when preachers go to the village, to a place to preach, जब प्रचारक गांव में प्रचार करने जाते हैं किसी जगह में, the devils must flee, the devils must be afraid, दुष्ट आत्माएं वहां से भाग खड़ी हों और डरें। the devils must be demolished. वहां पे दुष्ट आत्माएं नाश हों। But लेकिन you feel you go there to demolish the chickens. लेकिन ऐसा लगता है कि आप वहां मुर्गियों को खत्म करने, नाश करने जाते हैं। What kind of preacher are you? आप कैसे प्रचारक हैं? And what kind of people are you? और आप कैसे लोग हैं? When we have revival meetings, जब बेदारी की सभाएं होती हैं, the devils in that whole area must be disturbed, run away. उस इलाके के सारे दुष्ट आत्माएं बेचैन हों और वहां से भाग खड़ी हों। The Bible says, बाइबल बताती है, He sent His word and healed them. उसने अपना वचन भेज के उन्हें चंगा किया। If you turn to Ezekiel, यजेकल 34th chapter and 16th verse. 34वां अध्याय और 16वां पद। I will seek that which was lost मैं खोई हुई को ढूंढूंगा and bring again that which was driven away. और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा। I will bind up that which was broken. घायल के घाव को बांधूंगा। I will strengthen that which was sick. बीमार को बलवान करूंगा। But I will destroy the fat and the strong. और जो मोटी और बलवंत हैं उन्हें मैं नष्ट करूंगा। I will feed them with judgment. मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। Do you see this? आप देखते हैं, If we fatten ourselves, अगर हम अपने आप को मोटा कर लेते हैं, God says, परमेश्वर कहते हैं, I will feed them with judgment. मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। Are we fattening ourselves? क्या हम अपने आप को मोटा कर रहे हैं? I don't want to fatten myself. मैं अपने आप को मोटा करना नहीं चाहता। I want to serve. मैं सेवा करना चाहता हूँ। I want to wash my neighbor's feet. अपने पड़ोसी के पाँव को मैं धोना चाहता हूँ। I want to seek that which is lost. खोई हुई को मैं ढूंढना चाहता हूँ। God will give you that heart. परमेश्वर आपको ऐसा हृदय देंगे। Let us pray. आइए प्रार्थना करें।
Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Tell God in your heart, अपने मनों में परमेश्वर से कहें, Oh God, हे परमेश्वर, where is the heart that seeks one soul? कहाँ ऐसा हृदय जो एक खोई हुई आत्मा को ढूंढता है? Oh, if somebody gives 1,000 rupees more, I will run for that 1,000 rupees. अगर कोई मुझे 1000 रुपये ज्यादा देगा तो मैं वहां भाग जाऊंगा। Oh God, हे परमेश्वर, where is the heart that seeks one soul? कहाँ ऐसा हृदय जो खोई हुई एक आत्मा के पीछे Give जाए? me that heart. मुझे ऐसा हृदय दीजिए, Give me such a heart. मुझे ऐसा हृदय दीजिए। Wash me from my sins. मेरे पापों से मुझे धोइए। Let me not fatten मैं myself. अपने आप को मोटा ना करूं। Oh, we don't want a rich fellowship. हमें एक अमीर सहभागिता नहीं चाहिए। We want a fellowship rich in faith. हमें विश्वास की धनी सहभागिता चाहिए। Hear our prayer. हमारी प्रार्थना सुनिए। We want families which are rich in faith. हमें ऐसे परिवार चाहिए जो विश्वास में धनी हैं। We want preachers who are rich in faith. ऐसे प्रचारक जो विश्वास में धनी हैं। Come to us, Lord. प्रभु हमारे नजदीक आइए। Come to our boys and girls. हमारे जवान लड़के लड़कियों के पास आइए। Make them to be winners of souls. उन्हें आत्माओं के जीतने वाला बनाइए। Lord, hear our prayer. हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए प्रभु जी। How many people कितने लोग in Delhi, दिल्ली में, in Kashmir, कश्मीर में, in Uttar Pradesh, उत्तर प्रदेश में, in those areas close to Nepal where we are working, नेपाल के नजदीकी इलाकों में जहां हम सेवा करते हैं, even in Bhutan, और भूटान में भी we have not sought those souls. हमने ऐसी आत्माओं को नहीं खोजा है। How many souls yet to seek? कितनी आत्माएं हैं जिन्हें अभी तक खोजना है। Help us, Lord. हमारी मदद करें। Hear our prayer हमारी प्रार्थनाओं को सुने। and visit these dear people. इन प्यारे लोगों के पास आइए। And all the bondage of every type may be taken away. हर एक प्रकार का बंधन तोड़ दिया जाए। We ask in Jesus' holy name. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन।